ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ بانی پیٹائی کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میتھیو ملر نے کہا کہ کتنی بار کہوں کہ یہ سچ نہیں، سابق حکومت کو ہٹانے میں امریکہ کے کردار کے دعوے جھوٹے ہیں۔ بانی پیٹائی کے خلاف قانونی کارروائیاں پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کے الزامات سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ پاکستانی سیاست کے فیصلے پاکستانی عوام اپنے آئین کے مطابق کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر قتل کے حوالے سے کینیڈین نائب وزیر خارجہ کے بھارتی وزیر پر الزامات تشویشناک ہیں۔ ہم ان الزامات پر کینیڈا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے بھارت کے جموں و کشمیر کے غیر قانونی الحاق کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے ICJ کے رپورٹ پر جواب میں بھارت کے دعوے کو سختی سے رد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں سیکنڈ سیکرٹری پاکستان رابعہ اعجاز کا کہنا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی الحاق کو جموں و کشمیر کے عوام کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ سلامتی کونسل کی 1948 کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ الحاق کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ بھارت نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا تھا۔ جموں کشمیر پر بھارت کا جاری قبضہ بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ بھارت جموں کشمیر سے اپنی افواج کو واپس بلا کر سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ عالمی برادری سے اپیل ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت دلانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ جوڈیشل کمیشن کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بلاول بھٹو اور فاروق اچنائی کے نام تجویز کر دیے۔ پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن میں برابر کی نمائندگی کے حکومتی وعدے کے پیش نظر نام تجویز کیے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ برابر نمائندگی کے تناسب سے 2 PTI، 2 پیپلز پارٹی اور 2 حکومتی اراکین شامل ہوں گے۔ بانی PTI کے جوڈیشل کمیشن کے لیے عمر ایوب اور شبلی فراز کے ناموں کی منظوری۔ PTI آج 2 ناموں کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھیجے گی۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون جوڈیشل کمیشن میں نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اسپیکر کو نام موصول ہونے پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن میں 2 حکومتی اور 2 اپوزیشن اراکین شامل ہوں گے۔ بانی PTI کی اہلیہ کی بات کریں تو بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی زمان پارک لاہور پہنچ گئیں۔ بشرا بی بی نے لاہور جانے سے پہلے بانی PTI سے ملاقات کی۔ بانی PTI کی ہدایت پر بشرا بی بی زمان پارک پہنچیں۔ بشرا بی بی زمان پارک میں قیام کریں گی۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی لاہور میں زمان پارک پہنچ گئی ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ خان آفریدی نے تنازعات کے حل کے متبادل کمیٹی کی تشکیل تبدیل کر دی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو ADR کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی تمام متعلقہ افسران کو بھجوا دی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ، پاکستان ہائی کمیشن کا لندن میں مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اندراج مقدمہ کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شدید مذمت کی ہے اور نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن لندن نے حملہ کرنے والوں پر مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ جس گاڑی پر سوار تھے وہ پاکستان ہائی کمیشن کی ملکیت ہے۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملے کی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شدید مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حملہ آوروں کی شناختی کارڈ، بلاک اور پاسپورٹس منسوخ کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بیان پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹس یا شہریت کی منسوخی اور اجراء کے فیصلے محسن نقوی کے ثوابدید کے نہیں، آئین و قانون کے مرہون منت ہیں۔ اسموگ کی بات کریں تو پنجاب میں فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 235 ریکارڈ کی گئی۔ ادارے ماحولیات پنجاب نے لاہور میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا۔ فضائی آلودگی نے عوام کی صحت کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث گلے، سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ صورتحال کی نزاکت کے باعث لاہور میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ ڈیوس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈیورن روڈ اور کشمیر روڈ شملہ پہاڑی سے گلشن سینما اور ایپٹ روڈ ہاٹ سپاٹ ایریا میں شامل ہیں۔ شملہ پہاڑی سے ریلوے اسٹیشن اور ایمپریس روڈ کو بھی ہاٹ سپاٹ ایریا قرار دے دیا گیا۔
क्वीन मैरी रोड और उसके इतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। हॉट स्पॉट इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स इन इलाकों में नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रक्षा का इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद बैन होगा। महकमे माहौलियात ने ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सिफारत तकारी करना होगी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। स्मोक पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ़ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम खत्म कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी को तमाम जजेस ने बतौर चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया। फारूक एच नाइक कहते हैं जस्टिस याहिया आफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस कबूल करना पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक के मुतरादिफ है। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। मेरे ख्याल में सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट में ही होना चाहिए। मुझे 27वीं आईनी तरमीम के बारे में इल्म नहीं। देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब आए हैं, उन्होंने तमाम जजेस को अपेरेंटली क्या कहते हैं यूनिफाई कर दिया है। जो डिवाइड थी, जो नजर आती थी और जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के लिए और ऑनर के लिए अच्छा नहीं था, पीटीआई ने भी ये अपना बयानिया दिया है कि वो भी अपने मेंबर्स देंगे जो जेसीपी के अंदर आके क्या कहते हैं मेंबर्स बने उनकी पार्टी के। इसका मतलब है इम्प्लाइडली उन्होंने भी, पीटीआई ने भी 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है। जहां तक 27वीं तरमीम का ताल्लुक है कि मिलिट्री कोर्ट्स विद सनसेट क्लॉज होंगी, मेरे को इसके बारे में कोई इल्म नहीं, क्योंकि मैं हुकूमत वक्त का हिस्सा नहीं हूँ। हुकूमत वक्त सारी बातें इत्तेहादी को बताए, अगर वो बताएंगी भी तो टॉप लीडरशिप से डिस्कस करेंगी। देखिए, जहां तक सपोर्ट करने का ताल्लुक है, मैं एक कारकुन हूँ। इसका फैसला लीडरशिप करेगी, चेयरमैन बिलावल साहब करेंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, तो इसलिए मैं इसके बारे में अपना कोई पर्सनल कमेंट इस वक्त नहीं देना। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत अपने बयान पर डट गए। कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई इस वक्त मुमकिन होगी जब नवाज शरीफ चाहेंगे। शेर अफजल मरवत ने एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलो में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निजाम के अंदर रहते हुए साथ चलना चाहती है तो फिर इनको रजिस्टर ऑफ गुडलुन्स रूल्स पर होना चाहिए। और शेर अफजल मरवत का यह भी कहना है कि बयान इनकी जाती राय है। सिस्टम में रह के खान की रिहाई का मतलब ये है कि आप इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों से भी डायलॉग करें। ये अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम के अंदर रहती हुई इनके साथ चले, तो फिर इनको चाहिए कि जस्टिस ऑफ गुडविल दे। ये मेरी राय है। आज भी मुत्तफ़िका आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार है। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब कहा, आइन को अवाम की मर्जी का आइन नहीं कहा गया। आइन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया गया। आइन में अवाम की शराकत दारी को तस्लीम किया गया। हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। कौम को आइन दिया, इस सरजमीन को आइन से नवाजा और आज भी इस आइन का मुत्तफ़क़ा आइन का टाइटल जिंदा है, बरकरार है। हर चंद की इसमें तरामीम आई हैं और तरामीम मुतनाज़ा भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया गया। आइन कहता है तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे कि निज़ाम मुमलकत में अवाम की शराकत दारी को तस्लीम किया गया है। अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उन पर कोई मुसल्लत नहीं होगा। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगा।
मुझे नहीं लगता बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे कोई डील हो। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्ला कहते हैं बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला बिल्कुल दुरुस्त और कानून के मुताबिक है। बोले ये बदकिस्मती होगी अगर बानी पीटीआई की रिहाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुई। ट्रंप के हुक्म पर रिहाई लेनी है तो 1.5 साल जेल में क्यों रहे। कहा मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान पर असरअंदाज होंगे। उन्होंने मजीद कहा जुडिशल कमीशन का इख्तियार है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बिठाए या किसी और जज को। जजेस में ग्रुपिंग हुई, बेनकाब किया गया, खतूत लिखे गए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तफसीलात वेबसाइट पर आवेज़ा कर दी गई हैं। रोज़ाना, हफ्तावार और माहवार की बुनियाद पर मुकदमात निपटाए जाने की तफसीलात भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को 36 नए मुकदमात का इंदराज हुआ जबकि 124 मुकदमात निपटाए गए। गुज़िश्ता अदालती हफ्ते में 582 केसेस का इंदराज हुआ और 700 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर तक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,996 हो गई है। गुज़िश्ता अदालती हफ्ते में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 8,078 थी। माह रवां तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2024 में 822 मुकदमात दायर हुए, 1,462 मुकदमात निपटाए गए। अप्रैल में 1,795 मुकदमात दायर हुए, 1,516 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनिला का कहना है कि ये नाकाबिले तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने का कंट्रोल नहीं, अदालत की क़ुव्वत सिर्फ आवाम का एतमाद है। आवाम ये समझें कि बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ खुद हुकूक महदूद करने में मुलविस हैं तो इनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतर मिनिला ने उर्दू में इजाफी नोट तहरीर किया जिसमें साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले से इत्तेफाक किया। जस्टिस अतर मिनिला ने इजाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्तिलाह पार्लिमान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। जस्टिस अतर मिनिला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायजा लेती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने दोहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कतर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमला एयरपोर्ट पर मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कतर म्यूजियम में आर्ट और आर्किटेक्चर का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीरा ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल, मोहम्मद औरंगजेब, अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमाकारी का हजम 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब से समझौतों की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल शुरू हो चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। उम्मीद है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हम सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफराद क़ुव्वत फराहम करेंगे। सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमायाकारी का हजम बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका है। वज़ारत ख़जाना ने मुल्की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक SEO के कामयाब इनेकाद से मुल्की कारोबार और मार्केट पर एतमाद में इजाफा हुआ। IMF की पहली किस्त के इजरा से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया। सितंबर में तखफीफ गुर्बत के तहत 25,000 अफराद को 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के पहले 2 माह में हुकूमती अखराजात का हजम 635,000 अरब रुपए रहा, जबकि शरह सूद में कमी की वजह से सूद अदायगियों में 6.3% कमी हुई। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल के 3 माह में तरसीलात में 38.8% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में बरामदात में 7.8% और दरामदात में 15.7% इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारी में पहले 3 माह में 48.2% का इजाफा हुआ। मजमूई माली ज़खायर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के माली ज़खायर 11 अरब डॉलर से तजावुज़, रुपए की कदर में भी 3 रुपए तक बेहतरी आई।
PSL के डायरेक्टर सुहेब शेख और खवातीन क्रिकेट की सरबराह सानिया मलिक ओहदे से मुस्ताफी हो गईं। सुहेब शेख ने 13 महीने पहले PCB में दोबारा शमूलियत इख्तियार की थी। सानिया मलिक ने अक्टूबर 2021 में कज़ाफी स्टेडियम में अपनी जिम्मेदारियों का आगाज किया। COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर के मुताबिक सुहेब शेख और सानिया मलिक PCB के इंतजामी टीम के कलीदी अरकान थे। सानिया मलिक ने पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट को तरक्की देने के लिए लगन से काम किया। ICC की नई प्लेयर्स रैंकिंग में कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील की लंबी छलांग टॉप 10 में शामिल हो गए। नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए, जबकि बाबर आजम 18वें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा नंबर, भारत के जसवाल 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। विराट कोहली 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 14वें नंबर पर चले गए। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा भी टॉप 10 में शामिल हो गए।